Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Visible. Perfect, perfect. So this is reading comprehension passage. Read the passage, apply the strategies that I have discussed, and get the answers. These 4 questions, I will not speak anything for another 5 minutes, giving you 5 minutes to solve these 4 questions and then this explanation. सर थोड़ा जूम कर दीजिए, दिखाई ना दे रहा है उतना। सर क्लियरली विजुअल नहीं है। भाई तुम अपनी स्क्रीन जूम कर लो ना, अपनी स्क्रीन जूम कर लो या सॉरी, मैं इसको 1 पेज कर दूं या फिर इसको ऐसे ही रहने दूं? सर ठीक है, वो सर, zoom ऐसे कर कर लीजिए। लीजिए। ठीक है ना? आर वी एबल टू सी इट? जी जी जी, नहीं सर, प्लीज नहीं प्लीज सर, सॉल्व कर इट। दीजिए। 4 मिनट्स हैं। देखो, ऐसे सिंगल स्क्रीन करने पे ना एक बार में सिर्फ पैसेज दिखेगा, फिर क्वेश्चन दिखेंगे। आपके सामने पैसेज और क्वेश्चन दोनों दिखे, वो ज्यादा सही होता है आपको वापस स्विच करने के लिए। एग्जाम में ऐसे ही दिखता है। आप इसको जूम कर लो अपनी स्क्रीन को। सर मीटिंग अलाउ कर दीजिए सर, कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। मीटिंग अलाउ कर दें? रुकिए, मैं देख लेता हूँ कोई वेट कर रहा हो तो। यहाँ पे तो कोई नहीं है पार्टिसिपेंट्स। कर दिया है, अलाउ कर दिया है उनको, कोई पेंडिंग में नहीं है अभी। ठीक है। After 3 minutes, I'll be starting the explanation of all the questions of this reading comprehension passage. I have given you 5 minutes. Try करिए आप इसको 5 minutes में solve कर पाते हैं या नहीं कर पाते।
1 minute to left to solve all these 4 questions. I request please mute your mic unless it is required. चलो start करते हैं. I request please. जी. Okay, so this passage now, this 5 minutes time is over. The given time is over. Now let's see, how many questions are we able to solve correctly. मैं explanation कर रहा हूँ उसके साथ साथ आप समझते जाना. So पहले हम passage को read करते हैं. This passage is about what? So this first line of this passage, I told you the strategies to understand the theme of the passage first. देखो चाहे तो वो text completion हो या reading comprehension passage हो. Please मेरी बात को ध्यान से समझिए. Close test मिले आपको या text completion मिले या reading comprehension मिले. आपको पैसेज का जो फर्स्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको पढ़ के ट्राई टू गेट द थीम ऑफ द पैसेज एंड रीड द लास्ट लाइन, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ. करेक्ट? कि आप खुद से करना पड़ेगा. कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? क्लास नहीं करनी है तो चले जाइए जी. सो अगर हम इस फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं, this first line says, if we look at the world around us and all that is happening therein, we would be tempted to believe that either nature has made great differences between men and women, or the past civilization have been extremely partial towards men. Okay, see, this is reading comprehension passage, so one should not take it, in a different way कि मैं यहाँ अपना कोई opinion present कर रहा हूँ. This is reading comprehension passage और हमने इसको समझ के questions को answer करना है. तो the first line of this passage says कि कहीं ना कहीं ये जो passage जाएगा, ये differences, either differences created by the past civilization or differences created by people, मतलब लोगों ने self से create करे हो. किसके बीच में? Between men and women, maybe because of their rights, maybe because of their power, maybe because of their status, maybe because of their education. किसी भी एंगल पे जा सकता है, बट ये पूरा का पूरा पैसेज विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस. अब यहाँ से पैसेज, क्योंकि पैसेज का फर्स्ट लाइन टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस, हो सकता है इसमें आगे डिफरेंसेस के बाद आगे उसको गैप को फिल करने की बात करी हो सकता है कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करे हो. तो अभी हम लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ ऑल्सो पढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज दिस पैराग्राफ ऑल अबाउट. द लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ फ्रॉम हियर. So this last line is from here. Thanks. So thanks to the spacious impression created by these books, that means यहाँ पे किसी book का contribution और आ गया. किसके लिए? Women, with the exception of select few, become intoxicated by all the attention being showered on them and end up believing that their purpose in life is to win the love and approval of men, when they should actually of devoting their lives to more noble pursuits in order to earn the respect of the society. So ये जो second paragraph, जो first paragraph का last line कह रहा था, this was talking about giving or taking respect of women in the society, earning respect from the society, correct? तो ये जो बात चीज आ रही है, यहाँ पे आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट पे भी पॉइंट आया होगा. और इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दे जनरली गेट हैप्पी, दे जनरली फील प्लेजर ऑफ after getting showered of appreciation and attention by the men. तो यहाँ पे अभी ये जो पैसेज है, अभी मुझे किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है? दिस पैसेज टेकिंग मी टू द डायरेक्शन वेयर इट इज टॉकिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. व्हाई दिस स्टेटस? करेक्ट. नेक्स्ट, while I don't, अगर मैं इसके फर्स्ट लाइन को और पढ़ता हूँ, सेकंड पैराग्राफ को, while I don't intend to vigorously fight the people who view women as inferior. तो अभी भी हम वही बात कर रहे हैं जो फर्स्ट पैराग्राफ में बात करी थी कि the women in the society, they were considered inferior to men in the society. तो ये अब क्यों करे गए हैं? फर्स्ट वाला जो बात कर रहा था, वो बात कर रहा था सिविलाइजेशन का. यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? There is no denying the fact that nature has made women. तो here it is talking about natural things. So there were two factors. One is the civilization
that was developed by the people in past. And second is whether nature has also created women as weaker than men. तो यहाँ पे ये बात कर रहा है नेचर का. नाउ लेट्स रीड द लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ. आई ओनली रिक्वेस्ट माय फेलो वुमेन टू नॉट गेट टेकन इन बाय ऑल द अटेंशन men shower on them for their beauty and try to rise above such superficial concerns and make their mark on this world. तो यहाँ पे क्या क्या आगे ऑथर कह रहा है? ऑथर किस बात को सपोर्ट कर रहा है? ऑथर कह रहा है कि भैया उनको ना अपना जो अटेंशन है उसको सिर्फ इस ब्यूटी वाले अटेंशन को बियॉन्ड करके उनको राइज करना पड़ेगा, इस सुपरफिशियल कंसर्न के को बियॉन्ड करके राइज करना पड़ेगा जस्ट टू अर्न देयर रिस्पेक्ट, जो कि वो स्टार्टिंग में बात कर चुके थे, द लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ. अभी हमने पैराग्राफ को पूरा पढ़ा नहीं था, बट हमने इसका क्रिस्प निकाल लिया, हमने थीम निकाल लिया इसकी. अब देखो, आफ्टर गेटिंग द थीम ऑफ द पैराग्राफ वी मूव टू द क्वेश्चंस एंड देन अगेन वी स्किम द होल पैराग्राफ. पैसेज को बहुत स्पीड से पढ़ते हैं हम, टारगेट करते हैं पैराग्राफ को और उनको स्पीड से पढ़ते हैं, तो इट सेव्स आवर टाइम, it gives us the accuracy to answer the questions whenever the question is related to what is the primary purpose of the passage. Trust me my dear students, अगर आपने पैसेज को ठीक से समझा है, थीम को ठीक से निकाला है, then only you will be able to answer this question, the primary purpose of the passage, otherwise you will not. और अगर आप इस पैसेज को देखोगे तो except the third one, कहीं ना कहीं पैसेज से आपको कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के क्वेश्चंस आए हैं, कहीं ना कहीं उस पैसेज का पर्पस समझने के क्वेश्चंस आए हैं. तो प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अब हम एक बार स्किम कर लेते हैं, मैं फिर वापस कुछ सेकंड्स में इसको स्किम करता हूं पूरे पैराग्राफ को, दोनों पैराग्राफ्स को, आप भी स्किम कर लीजिए. तो ये हमें बता रहा है कि कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स थे. पहले पास्ट सिविलाइजेशन की बात करी है, दोनों के बीच के डिफरेंस को. सेकंड में उसने नेचर से बात करी है, जब वो फिजिकली स्ट्रांग और वीक की बात कर रहा है, मेन एंड वुमेन का. और उसके बाद उसने इनफैक्ट उनको बात करी है वुमेन को कि अगर पेन को बेयर करने की बात है तो दे द फर्स्ट वन, दे द बेस्ट वन. बट वो आगे कह रहा है कि नहीं, आपने अपने स्टेटस को राइज अप करना पड़ेगा, अपनी रिस्पेक्ट को राइज अप करना पड़ेगा, सिर्फ आप अपनी तारीफों में ही मत रहिएगा. ठीक है. नाउ द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज टू, अब यहाँ ऑथर का प्राइमरी पर्पस क्या है? अ क्वेश्चन, सबसे पहला देखो, हम यहाँ पे प्राइमरी पर्पस के क्वेश्चंस में ना ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस. अब ये पहला क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है, अ क्वेश्चन मेल राइटर्स फॉर नॉट फोकसिंग ऑन द इश्यूज ऑफ वुमेन इन देयर लिटरेरी बॉक्स, सॉरी. तो पहली चीज तो कहीं से कहीं तक आप इसको पढ़ के देखोगे तो ऑथर ने क्वेश्चन किसी से नहीं पूछा है. देयर इज नो क्वेश्चन इन द पैसेज टू आस्क, especially he is not questioning male for the status of women in the society. कि भैया आपने अपनी बुक्स में भी अगर कुछ लिखा था, कुछ ऑथर्स ने लिखा था अपनी बुक्स में इनके स्टेटस को लेके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो दीज बुक्स फ्रॉम हियर, जहाँ पे हम लाइन को पढ़ रहे थे, करेक्ट. तो ऑथर का पर्पस देखो, ये जो आपको सेंटेंसेस मिलेंगे ना, प्राइमरी पर्पस, ये क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? बिकॉज यू विल बी गेटिंग ऑल द ऑप्शंस, मे बी ऑल द ऑप्शंस प्रिंटेड इन द पैसेज, लेकिन जो प्रिंटेड स्टेटमेंट होता है दैट इज नॉट नेसेसरी, रादर बहुत कम चांसेस होते हैं कि दैट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज. तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग नहीं हुई है, तो मैं पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहा हूं. ऑप्शन 2 मेरे सामने आता है कि ऑप्शन बी, reconcile to contrasting opinion about the role of women in our society. बहुत ज्यादा 90% तक लोग, जब मैं फर्स्ट टाइम इस पैसेज को दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को शो करता हूँ, तो गुड नंबर, मतलब 70% 80% स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को मार्क करते हैं कि यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. सबसे पहले मुझे ना रिकंसाइल का मीनिंग समझना पड़ेगा. रिकंसाइल का मीनिंग समझते ही मुझे समझ में आ जाएगा कि पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या है. देखो, ऑथर ने पैसेज को स्टार्ट किया उस कंसर्न को डिस्क्राइब करके कि ये जो डिफरेंस है सोसाइटी में बिटवीन मेन एंड वुमेन, ये दो तरह से हो सकता है, या तो एक नेचर का दिया हुआ है, या दूसरा हमने सेल्फ से क्रिएट करा है, जो हमारी पास्ट सिविलाइजेशन ने क्रिएट करा है. और आगे आके वो वुमेन को भी कह रहा है, वुमेन को कह रहा है कि भाई आप ना ऐसा, आपने आप सिर्फ इसके लिए, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहा, कोई सजेशन नहीं दे रहा है. आई ओनली रिक्वेस्ट माई फेलो वुमेन, अगर हम लास्ट लाइन को देखें, कि आप सिर्फ अपने अटेंशन ग्रैबिंग जो एटीट्यूड है, ब्यूटी के लिए अटेंशन ग्रैबिंग एटीट्यूड है, जिससे आप खुश हो जाते हैं, आप उस सुपरफिशियल एटीट्यूड को
लीव करके आप राइज करिए अपने आप को, अपनी रिस्पेक्ट को, राइट, अपने स्टेटस को। तो यहाँ पे जो ये पैसेज आया है, दिस सेकंड, रिकंसाइल का मीनिंग आप सबको पता होगा, रिकंसाइलिंग इज प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू समथिंग, राइट। जैसे कोई प्रॉब्लम आई उसका कुछ समाधान कर देना इज रिकंसाइलिंग। तो क्या वो रिकंसाइलिंग टू कंट्रास्टिंग ओपिनियन, दो ओपिनियन तो कंट्रास्टिंग थी अबाउट द रोल ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, लेकिन यहाँ पे वुमेन के रोल की बात नहीं करी है उसने, तो डिफरेंस की बात करी है, मेन एंड वुमेन के स्टेटस की। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। ऑप्शन सी पे मैं आता हूं, describe how parents and schools are making women weak by encouraging them to focus only on superficial beauty। पूरे पैसेज में आपने अगर स्किम करके देखा होगा तो कहीं भी ऑथर ने पेरेंट्स की बात नहीं करी कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेकिंग दैम वीकर, राइट। तो ये जो सी ऑप्शन है दिस आल्सो एलिमिनेटेड, ये भी ठीक नहीं है। नाउ आई एम टेकिंग यू टू ऑप्शन डी, आर्ग्यू दैट वुमेन आर मेंट टू and should be encouraged to serve a higher purpose in a society than just to look attractive। अभी हम जब लास्ट लाइन पढ़ रहे थे तो लास्ट लाइन says the same thing that I request, ऑथर उनको बोल भी रहा है, my fellow women to not get taken in by all attention। अगर आप इस लास्ट लाइन को देखोगे तो बिल्कुल कंक्लूजन मेरा प्रूव करता है इस ऑप्शन डी को। सी, जब भी हम पैसेज का प्राइमरी पर्पस समझते हैं तो वो दोनों तीनों जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं हर पैराग्राफ का उसमें कंक्लूजन आता है। सो आर्ग्यू मीन्स प्रेजेंटिंग एन आर्ग्यूमेंट। आप आर्ग्यूमेंट का मतलब ये नहीं वो किसी से बहस कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है। सो आर्ग्यूइंग इज प्रेजेंटिंग एन आर्ग्यूमेंट मीन्स कि वो कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा है। आर्ग्यूमेंट का मीनिंग होता है प्रेजेंटिंग फैक्ट्स। तो यहाँ पे ऑथर ने फैक्ट्स को प्रेजेंट भी करा है और उसने वुमेन के उसको स्टेटस को इंप्रूव करने का सोसाइटी में मतलब यहाँ पे उसने उसको मेंशन करा है, करेक्ट। तो डी ऑप्शन जो है वो प्राइमरी पर्पस है इस पैसेज का। अब मैं ई को भी देख लेता हूँ क्योंकि कुछ ने अगर ई भी मार्क करा होगा तो सर ई मेरा क्यों गलत है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ई सेज propose a restructuring of the role. So once again, it is talking about the roles of women in the society and it is proposing. So neither the author is proposing any role of women in the society nor he is concealing any role or concealing between the roles of women in the society. Correct? तो पहले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं प्राइमरी पर्पस का तो ऑप्शन डी वाज करेक्ट आंसर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको लेके जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट स्टेट ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है आप कुछ सेकंड्स में इसका आंसर कर चुके होंगे। कह रहा है पैसेज के हिसाब से जो करंट स्टेटस है वुमेन का सोसाइटी में उसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, द पेरेंट्स ऑफ वुमेन, द वुमेन देमसेल्व्स और बुक बाय सम मेल राइटर्स। तो अगर हम पैसेज को पढ़ेंगे, हमने स्किम करके देखेंगे तो पेरेंट्स का डिस्कशन तो कहीं भी नहीं हुआ था, बट यस द वुमेन देमसेल्व्स कहां पे डिस्कशन हुआ है। वुमेन कहा कि वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं अपने इस पॉइंट के लिए जब वो लास्ट लाइन में बात कर रहा था, इस लास्ट पैराग्राफ में बात कर रहा था। This is the way he was talking about the books, and if I'm reading here, what I have a problem with that man, physical inferiority, women as the overall weaker. This is simply correct as women are often mentally much stronger than women, also have much greater capacity of wearing pain. Okay, so this is the point that we have. Yes. So this is from here. So books से लिया गया है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है दोनों का। अगर आप यहाँ से यहाँ तक स्किम करके आएंगे, so who is responsible for that? The women themselves, क्योंकि बहुत women themselves दोनों पैराग्राफ में उसने एक ही बात करी कि they get pleased with the shower of attention and appreciation, right, about their beauty only, not about their intellectual, not about their leadership qualities, not about their standard in the society, right। तो मतलब यहाँ पे उसने बोला है कि major part बहुत सारे। So who is responsible? Women themselves and book by some male writers. Both the options, option 2 and option 3, जो स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 हैं हमारे सामने, वो दोनों ही फैक्टर्स हैं इस पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन सी में यहाँ पे दोनों को शो कर रखा है, करेक्ट। नाउ आई एम टेकिंग यू टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशियस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशियस एज यूज्ड इन द पैसेज? सो स्पेशियस का मीनिंग क्या है? Am I audible to everyone? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. सर लॉर्ड। यस।
जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो स्पेशियस का मीनिंग लार्ज है। ठीक है, आपने सही गैस करने की कोशिश करी है। कैन यू फिट इन द मीनिंग लार्ज वेयर दिस वर्ड इज गिवन? अगर आप इसको यहाँ पे स्पेशियस जहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इस वर्ड को लेके जाओगे लार्ज को, तो विल यू बी एबल टू ड्रॉ द मीनिंग ऑफ दिस द वर्ड द सेम एज इट इज रिटन इन द टेक्स्ट? So it was not guess. आप हाँ इसको सर। देखिए Perfect. कहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्ड। यस, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बिल्कुल लास्ट लाइन पे ही। तो वी आर अनेबल टू ड्रॉ द करेक्ट मीनिंग। बिल्कुल लार्ज का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, स्पेशियस का मीनिंग होता है समथिंग विच इज नॉट ट्रू एंड काइंड ऑफ द क्वालिटी विच इज यूज्ड टू डिसीट समबडी। एक्चुअल में वो ट्रू नहीं है, बट वी ट्राई टू शो इट एज द ट्रुथ, करेक्ट? मतलब किसी को धोखा दे के किसी चीज को प्रेजेंट करना। तो डिसेप्टिव इज द राइट वर्ड हियर, क्योंकि लार्ज फिट नहीं आता है, एकोमोडेटिंग नहीं आता है। अनकन्विंसिंग हो सकता था, बट अनकन्विंसिंग इज अ डिफरेंट क्वालिटी, जब हम बात करके किसी को कन्विंस ना कर पाए। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कन्विंस कर रहे हैं। कन्विंस कैसे कर रहे हैं कि विच इज नॉट एक्चुअली ट्रुथ, वी आर शोइंग समथिंग एल्स। और मैलिशियस का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच कॉजेज हार्म्स, राइट? समथिंग विच इज हार्मफुल, मैलिशियस। तो हम थर्ड को देखो, ये तो वोकैब का क्वेश्चन करके रखें। थैंक यू। Okay, so this third question was from vocabulary based on this passage. These first two questions, question number one was absolutely indirect question where we had to draw a primary purpose of the passage, and question number two was direct question. We had to find out the inferences, right? Question number four says of this passage that which of the following assertions, so two assertions have been given here. Assertions means statements, assertive statements. Would the author of the passage most likely agree with? देखो ये जो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टॉप करूंगा। ये क्वेश्चन ना दो तरह से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेटमेंट दिया होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और assertions would the author of the passage most likely agree with और most likely not agree with। दोनों तरह की कंडीशन आता है। agree with वाला क्वेश्चन इजी हो जाता है कि वो वही पूछ रहा है जो मैं पढ़ के आया हूँ। not agree वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि whenever it is being asked that which of the statement the author doesn't agree with from the passage, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सारे एग्रीमेंट के स्टेटमेंट दिए होते हैं। और मेरी टेंडेंसी क्या होती है, मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में गलती करने के चांसेस, क्योंकि हमने बचपन में तो यही पढ़ा है, कोई भी स्टेटमेंट मिल जाए मुझे वहां पे क्वेश्चन में और वो स्टेटमेंट में प्रिंटेड हो पैसेज में, तो मैं मान लेता हूँ कि दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट? मतलब दिस इज द बेसिक टेंडेंसी ऑफ मेकिंग रॉन्ग ऑप्शंस। मैं नहीं कह रहा कि आपकी टेंडेंसी होगी। तो यहाँ पे हमने क्या ढूंढना है कि उन स्टेटमेंट को ढूंढना है जिनके लिए ऑथर एग्री कर रहा है। सबसे पहला कह रहा है men are physically superior to women। ये तो उसने बोला ही था जब सेकंड पैराग्राफ में he was talking about the nature's biased role। आप अगर पहला स्टेटमेंट में पढ़ोगे तो यहाँ पे नेचर ने लिखा है कि women as inferior to them, right? Physically inferior to men। So men are physically superior to women, ये हम पॉइंट मान सकते हैं। women enjoy the attention lavished on them by men। मल्टीपल टाइम्स रीड कर चुके हैं हम, जब लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ रहे थे तो भी रीड कर चुके थे। women should rebel against the injustice meted out to them by men। ये थर्ड स्टेटमेंट कहीं नहीं लिखी हुई है कि रिबेल करना चाहिए, rebellious, they should be rebellious about it, the injustice which is being used by men in the society, right? So this is not there, but yes, उसने लिखा है कि हमने, ऑथर ये तो कह रहा था कि I request my fellow women not to get pleased just by the getting or grabbing attention of men or showering attention of men। So यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट 1 and 2 को ऑथर पूरी तरह से एग्री कर रहा है पैसेज में। थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट मेंशन देयर, थर्ड स्टेटमेंट की उसने बात ही नहीं करी है। तो हमारा जो क्वेश्चन सही हो जाता है, आर ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज़ इट इज टॉकिंग अबाउट बोथ द स्टेटमेंट्स, बोथ द असर्शंस, करेक्ट? देखो आरसी को सॉल्व करना में टाइम, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, तो विदाउट वेस्टिंग अनदर मिनट आई एम शोइंग यू हियर द नेक्स्ट ब्यूटीफुल कैटेगरी। पूरे पैसेज को देख लीजिए, 5 मिनट्स ले लीजिए। आई विल स्टार्ट डिस्कशन, आई विल बी शेयरिंग द आंसर। ये मेरे पास 6 सेंटेंसेस हैं, A B C D E F,
और मेरे पास ये 6 ब्लैंक्स हैं जो मैंने हर पैराग्राफ के इधर एंड और इधर इन द मिडल मैंने कहीं ना कहीं उनको फिट कर दिया है। आप इनमें से इन 6 सेंटेंसेस को चूज करके इन S1 S2 S3 S4 S5 S6 का कॉम्बिनेशन बता दीजिए यहाँ पे। ये ऐसे समझिए कि आपने इस पैराजम्बल्स ABCDEF को आपने एक सीक्वेंस देना है जो इसमें फिट होगा। S1 कौन सा सेंटेंस रहेगा, S2 कौन सा, ठीक है। सो टेक 2 to 3 minutes, 5 minutes में हम इसको सॉल्व करते हैं। सचिन जी, मैं 2 मिनट ले सकता हूँ क्या? यस सर, प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सचिन जी। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। मैं बस एक 2 बातें करूँगा। आई एम रियली हैप्पी विद EC and EN स्टूडेंट्स, दे आर अटेंडिंग आवर सेशन इन गुड नंबर्स। अभी सर RC की बात कर रहे थे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं आज फिर बोल रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि जब आप लोग यहाँ पर कोड कर रहे होगे या फिर रिक्वायरमेंट बना रहे होंगे या फिर SRS स्पेसिफिकेशंस बना रहे होंगे किसी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, तो आपको जो किसी और ने लिखी हुई है रिक्वायरमेंट उनको समझना आना चाहिए। यू नीड टू इंटरप्रेट राइट वेरी फर्स्ट टाइम। अदरवाइज अगर आपने उसका जो रिक्वायरमेंट लिखी गई है वही गलत समझी, तो आगे जो आप कोडिंग करने वाले हो, जो डेवलप करने वाले हो, इट इज़ ट्रू फॉर एनी ब्रांच, नॉट IT, नॉन IT ऑल्सो। अगर आपको रिक्वायरमेंट ही समझ में नहीं आई, आप ब्रिज बनाने वाले हो या आप कोई ऐप बनाने वाले हो, गलत बना दोगे। दिस ईयर कंपनीज आर फोकसिंग टू मच ऑन RC। 3 आई थी कैपजेमिनी में, 8 क्वेश्चन में से 4 TCS का जो सैंपल पेपर है, 4 क्वेश्चन 50% क्वेश्चन RC के ही इन्होंने दिए हैं सैंपल में, ठीक है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अपनी बात मैं खत्म करता हूँ। दूसरी बात, आप लोग अटेंड तो अच्छे नंबर में कर रहे हो, लेकिन आप लोगों का जो क्विज में पार्टिसिपेशन है, जो हमने NQT के बेसिस पे टेस्ट बनाया है, विच इज़ गुड इनफ फॉर कॉग्निजेंट ऑल्सो, क्योंकि कॉग्निजेंट का जो सिलेबस है वो सबसेट है TCS के सिलेबस का। मेरे को जो कल क्विज मिली है मैं इसी में बता देता हूँ। A सेक्शन में 35, B सेक्शन में आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी, ओनली 17 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया हमारी क्विज में। C सेक्शन में 24 स्टूडेंट्स थे। ENA में 21, ENB में 22। ठीक है, पहली क्विज थी, मैंने आप लोगों की अटेंडेंस आपके जो हेड हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे शेयर नहीं करी ऑफिशियली, मैंने वर्बली शेयर करी है, लेकिन आज से आप लोगों की अटेंडेंस में शेयर करूंगा। और अगर मुझे यहाँ पर अटेंडेंस अच्छी नहीं मिली तो मैं नेगेटिव बात नहीं करता हूँ अभी, ठीक है ना। हम पॉजिटिव रहते हैं। ये प्रोग्राम जी। आप लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। दिस इज फॉर यू पीपल ओनली। रात भर जाग के मेरी टीम पेपर बना रही है, क्योंकि पेपर बनाने हैं आपके लिए, 3rd ईयर के लिए, 2nd ईयर के लिए, तीनों ईयर में क्विज चल रही है, उनका सॉल्यूशन जाना होता है, ठीक है ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर वर्किंग फॉर योर जॉब, है ना। मैं समझता हूँ शायद आपके पेरेंट्स उतना नहीं सोच रहे होंगे जितना मैं बैठ के सोच रहा हूँ, आपके सचिन सर सोच रहे हैं, राधेश्याम सर सोच रहे हैं, राकेश सर सोच रहे हैं, है ना। तो आप उतना हमें हमारे इस टाइम को रिस्पेक्ट करें, ठीक है। चलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सचिन सर, ओवर टू यू। आज मैं आप लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 100% आप लोग अपीयर करेंगे टेस्ट में। 5 बजे से रात के 12 बजे तक ओपन है। 7 घंटे में 2 घंटे निकाले जा सकते हैं अपनी नौकरी के लिए, वो भी तब जब 2 मेजर कंपनीज आ रही हैं और ये आपका लास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। यस मैम। सर एक्चुअली मेरे को एक प्रॉब्लम थी। वो टेस्ट में जो लर्निंग्स पे टेस्ट हो रहा है उसका एक्चुअली मेरे पास पासवर्ड नहीं है, तो इस वजह से मैं टेस्ट नहीं दे पा रही हूँ। मैम आई एम सॉरी, लर्निंग्स वाला जो टेस्ट है ना, लर्निंग्स वाला जो टेस्ट है, दैट इज कंडक्टेड बाय अजीत शुक्ला सर। सो यू कैन टॉक टू अजीत शुक्ला सर एंड द टीम, द टेक्निकल टीम। ये जो सीप का है, ये माइक्रोसॉफ्ट क्विज पे हो रहा है, जिसका लिंक आपको जाता है, और गूगल टीम इस पे मीट पे क्लास हो रही है, इस पे टीम पे क्लास हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, ठीक है मैम। ओके, सो आपके सामने स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन, जिसमें आपने ब्लैंक्स में सेंटेंसेस को फिल करना है। हेलो यस 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 जी। एक पेज का बना दीजिए, वो दिखाई नहीं दे रहा पूरा क्लियर। ठीक है, अभी फिलहाल जूम कर लीजिए, मैं अभी इसको लो 1 पेज कर देता हूं अभी। मैं इसको व्यू 1 पेज कर लेता हूं, लेकिन अभी 1 पेज व्यू करने में भी
रुक जाओ, मुझे दोबारा से इसको, अब दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ? Sir, it is quite blur. ब्लर कर रहा है, ओके Now okay, sir. Now it's okay. Now it's okay. ओके ना, ओके सो रीड S1 S2 यहाँ तक पढ़ लीजिए आपको पहले, फिर मैं एक साथ आपको मिसिंग सेंटेंसेस दिखा दूंगा, ठीक है? Okay, sir. Cool, sir. Cool. ग्रेट। सेंटेंस को गैस करने के लिए आप उससे पहले वाला सेंटेंस जरूर पढ़ें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसका कनेक्ट क्या है नेक्स्ट सेंटेंस से, करेक्ट? थोड़ा सा तेज चलते हैं, थोड़ा स्पीड मेंटेन करते हैं यहाँ पे। इसको रिमेनिंग पैराग्राफ को पढ़ने का भी हमें नीड नहीं है फिलहाल। तो दीज आर द मिसिंग सेंटेंसेस ABCDEF। तो आप मुझे बता दीजिए इनका सीक्वेंस क्या होगा S1 S2 S1 से लेके S6 तक। रीड ऑल द सेंटेंसेस। डिस्कस करें। मुझे डिस्कस करने के लिए पहले टेक्स्ट मुझे डिस्कस करने के लिए टेक्स्ट और मिसिंग सेंटेंसेस साथ साथ चाहिए होंगे स्क्रीन पे। तो आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे जरा इसको 2 पेज व्यू करके, अब थोड़ा सा आप इसको, आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया है ना, अब देखते हैं। देखो दिस फर्स्ट सेंटेंस के लिए स्टेटमेंट कहता है अ ट्रॉपिकल ट्री ड्वेलिंग लिजार्ड सक्सीडेड इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट बाय लर्निंग टू एसोसिएट द कलर ऑफ कैप with a food reward contrasting stereotype that reptiles are extremely limited to cognitively compared to birds। तो किसकी बात कर रहा है ये? cognitive abilities की बात कर रहा है, reptiles की किसके कंपैरिजन में? birds and mammals के कंपैरिजन में। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा अगर हम इसको देखें? their success, अभी उसने उनकी किसी स्टडी किसी थॉट की बात ही नहीं करी जिसपे उनकी सक्सेस की बात करेगा रेप्टाइल्स की, अभी तो कंपैरिजन कर रहा है कॉग्निटिव क्वालिटी पे। सेवरल लिजर्ड्स ऑफ दिस स्पीसीज वर कलेक्टेड, हो सकता है बिल्कुल इस एक्सपेरिमेंट के लिए लिए गए हो, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट का ही पता नहीं है कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ है। वी नेम्ड दीज, बिल्कुल नहीं आएगा सी वाला, क्योंकि अभी तो उनको प्लेटो सॉक्रेटिस किसको नाम दे रहा है? बर्ड को, मैमल्स को। यहाँ पे तो 3 की बात कर रहा है वो, रेप्टाइल्स, राइट? रेप्टाइल्स की बात कर रहा है, बर्ड्स की बात कर रहा है, मैमल्स की बात कर रहा है, लिजर्ड की। तो कहां पे आए? डी सेज द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ रेप्टाइल्स हैव रेयरली बीन स्टडीड। तो ये जो डी स्टेटमेंट है जो कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात कर रहा है रेप्टाइल्स की, वो दिस इज द स्टेटमेंट 1। अब हम 2 पे आते हैं। पैराग्राफ 2 कहता है, आप समझते रहना, फिर डाउट हो तो मुझे बताना। द प्यूर्टो रिकन लिजर्ड, ये एक स्पीसीज ली है उन्होंने, द प्यूर्टो रिकन लिजर्ड यूज्ड इन द स्टडी, एक स्टडी की बात आ गई है, in a well studied species known to excel, this is foraging food by being acutely aware of movement। और यहाँ पे मैं देखूं तो we have statement 1 is also about species, but उसने बोला he said। अब he said पे हमें इससे पहले अभी तक किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो किसने कहा? और जब तक ये प्रोनाउन नहीं आ सकता, जब तक किसी का नेम पता चले कि ये स्टडी किसकी बात हो रही है, राइट? तो यहाँ पे किसका आएगा ये स्टेटमेंट? और आगे ऑप्शन सी कहता है, ऑप्शन बी कह रहा है सेवरल लिजर्ड्स ऑफ दिस स्पीसीज। कौन सी?
प्यूर्टो रिको, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके थे। तो S2 स्टेटमेंट किसको लेके आ रहा है? S2 स्टेटमेंट लेके आ रहा है बी ऑप्शन को। तो अभी मेरा सीक्वेंस क्या चल रहा है? D एंड B, 1 and 2। थर्ड वाले ऑप्शन में आते हैं। The lizards were then given a choice between two caps. No, the one was blue and the other was yellow and blue. Under only one was the food reward of a worm। जहां पे फूड रिवॉर्ड की बात कर रहा है, एक वर्म के कैप्स की बात कर रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट किस में आएगा? They quickly learned to distinguish which cap had the reward, क्योंकि दो कैप थी, ब्लू एंड द येलो ब्लू, एंड रिवॉर्ड किस में था? तो दे क्विकली लर्न टू डिसइंटिग्विश। सो S3 इज F। DBF मेरा सीक्वेंस बना है अभी तक। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 4। They learn to associate the color of the cap with the food reward। बिल्कुल कनेक्शन आ गया है लास्ट वाले सेंटेंस का पहले वाले सेंटेंस से। Said Manuel Lale, the Duke University researcher who led the study। Now study की बात हुई है, और क्या स्टडी की बात हुई है? The lizards solve the problem। तो यहाँ पे अब मेरे पास ऑप्शन क्या क्या जा चुके थे? D, B और F। थर्ड 3 ऑप्शन चले गए। फोर्थ ऑप्शन में मुझे ढूंढना है। अब या तो A कहेगा their success on a test based on some studies, right, some studied, और C तो studied को नहीं मतलब स्टडी को नहीं दे रहा है यहाँ पे, और E कहता है thus a mistake by lizard means it must remember until the next day। अच्छा, ये अभी हम इसको भी देखेंगे कि E कहीं और भी फिट हो सकता है। फिलहाल हम पुटिंग A हियर। A और E में से हम ऑब्लिक कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि या तो A आएगा या E आएगा। अब 5 को देख लेते हैं। 5 क्या कहता है? 5 कहता है कि lizards get just 1 chance per day because they eat less, while birds usually get up to 6 chances a day। तो सीधी सीधी बात है यहाँ पे। and when the color of the caps was switched, तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि वो ऑप्शन E कहता है thus a mistake by a lizard means it must remember until the next day because it is getting just 1 chance 1 day। करेक्ट? तो E ऑप्शन मेरा फिट हो गया है 5 में। A मेरा ऑप्शन रह गया 4 में, और फिर C को तो लास्ट को पढ़ने का जरूरत नहीं है। 6 is C। So a combination is here D, B, F, A, E, C। So this is the first one, this is second one, D, B, F, A, E and last is C। ठीक है? अभी 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में मैं एरर करेक्शन के इन सेंटेंसेस को आपको बता दूं। आपको सॉल्व करने का इनको जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देख लीजिए कैसे हमने इनको सॉल्व करा है, फिर मैं स्विच कर जाऊंगा दूसरे क्लासरूम में। दिस इज द बॉय, आप इसका सिर्फ फंडा समझ लीजिए इसमें एरर कहां था। दिस इज द बॉय whom I think had won the gold medal in the dance competition। देखो ये सेंटेंस देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, बट द प्रॉब्लम इज ये जो whom है ना यहाँ पे whom, वैसे तो यहाँ पे this is the boy whom होना चाहिए था, बिल्कुल सही हो सकता था, relative pronoun, लेकिन ये relative pronoun नहीं है यहाँ पे। ये जो won verb आया है, ये won verb किसके लिए आया है? boy के लिए आया है। तो who won होना चाहिए whom won के बजाय, क्योंकि whom जो है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है और who जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है। तो दिस इज द बॉय हु आई थिंक हैड वॉन। तो एरर कहां पे था? पार्ट बी में था, whom को रिप्लेस करके हमने who रख देना था। करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन द रोड इज मोर देन ऑन द मेन रोड। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री में ना मैं कई बार बता चुका हूं आपको, लास्ट टाइम भी जब क्लास कर रहा था तो बताता था कि कंपैरेटिव डिग्री में हम जब कंपैरिजन करते हैं तो लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको एज इट इज लिख देते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन शुड बी मेड बिटवीन और अमंग द सेम आइटम्स। यहाँ पे हम किस किस का कंपैरिजन कर रहे हैं? यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? मेन रोड से कर रहे हैं। राइट? सो नंबर, देखो नंबर जो है कई बार हम इसमें मिस्टेक सोच सकते हैं कि आर होना चाहिए था, नहीं, बिल्कुल ठीक है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड, नंबर जो है इज मोर देन द नंबर ऑफ द व्हीकल्स आर और प्लेइंग ऑन द मेन रोड। तो इस रोड पे व्हीकल्स का नंबर का कंपैरिजन मेन रोड पे व्हीकल के नंबर से कंपैरिजन होना है। करेक्ट? ना कि इस रोड का मेन रोड से कंपैरिजन है। सो एरर था डी में। नाउ ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है, ये जो है स्टार्स के बीच में लिखा हो, क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइंड का ऑप्शन था, मैंने अंडर, यस
सर एरर Yes, जो sir. है सर एरर जो है उसको ऐसे भी तो करेक्ट किया जा सकता है कि जो सी पार्ट है सर उसमें इज मोर Correct, देन दोज बताइए। ऑन द मेन रोड। बिल्कुल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। दोज जो मैंने लिखा है, आपने जो मुझे दोज बताया है, दोज क्या है? दोज इज अगेन अबाउट द सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रोड, ऑन दिस रोड। करेक्ट? तो बिल्कुल हो सकता है बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रोनाउन आपने यूज कर दिया है वहां पे, बिल्कुल ठीक है। ओके अब हम बात करते हैं यहाँ पे अंडरलाइंड और द पार्ट ऑफ द सेंटेंस रिटन बिटवीन द स्टार्स। जो ये लिखा हुआ है इसको रिप्लेस करना था। तो यहाँ पे लिखा हुआ था, हालांकि अब तो मैं इसको वन पेज में ही आपको दिखा दूं। दिख रहा है ना? he did not want risking to get wet as he had only one suit। तो ये इसमें अंडरलाइन पोर्शन को रिप्लेस करना था, और रिस्किंग टू गेट वेट को मैंने, क्योंकि जब हमारे पास दो वर्ब, देखो हमेशा याद रखना, जब भी हम दो वर्ब्स को एक सेंटेंस में लिखते हैं तो हमने इन्फिनेटिव या फिर जीरेंड फॉर्म को यूज करना होता है। इन्फिनेटिव टू के साथ आता है और जीरेंड फॉर के साथ आता है। फॉर रिस्किंग, टू रिस्क, ऐसे होना चाहिए था। करेक्ट? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, जो टू रिस्क बोल रहा है, टू रिस्क गेटिंग वेट। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, इनफैक्ट लास्ट ही है ग्रामर का। तो he postponed making a decision until he been given complete information। तो यहां पे क्योंकि दिस इज द पास्ट टेंस, ही पोस्टपोन द मीटिंग, तो यहां पे सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट के साथ कंडीशनल सेंटेंसेस में हम क्या रखते हैं? पास्ट परफेक्ट रखते हैं। ही पोस्टपोन्ड मेकिंग अ डिसीजन अंटिल ही हैड बीन गिवन। ही हैड गिवन नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। उसको अपॉर्चुनिटी, उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिली, उसने दी नहीं। तो अंटिल ही हैड और टिल ही हैड बीन गिवन, राइट? तो यहाँ पे अब क्योंकि यहाँ पे सर सुनाई दे रहा है ना सबको? अच्छा आगे सर, बस सर ये लास्ट कर दूं तो आई एम लिविंग दिस। सो ऑप्शन इज टिल ही हैड बीन गिवन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अच्छा, अंटिल कब यूज करते हैं? जब हम नेगेटिव सीक्वेंस की कंडीशन नेगेटिव लगा रहे होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव कंडीशन नहीं लगी है, यहाँ पे पॉजिटिव कंडीशन लगी है। सो विद पॉजिटिव कंडीशन वी यूज पॉजिटिव कंजंक्शन। ठीक है, चलो राधेश्याम सर आ गए। वेलकम वेलकम राधेश्याम सर टू द सेशन। थैंक यू सो मच सर। मैं क्विट कर रहा हूँ क्लास से, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सर आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया स्क्रीन प्रेजेंट करने में? नो नथिंग नथिंग, बल्कि मैं तो आज बहुत बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ, मजा आ रहा है मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो मैं मूव कर बच्चा लोग पहले मुझे ये बताओ कि मैं नहीं दिख रहा हूँ, आवाज आ रही होगी मेरी? सर आ रही है यस सर। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। आ रही है आवाज? स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, सो बताओ। हाँ सर। नहीं स्क्रीन है? दिख गया सर, दिख गया, अभी दिखा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। गुड 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 गुड, वेरी गुड। चलो तुम लोग को तो ये सीट में भेज दिया था, ठीक है ना? उम्मीद करता हूं कि कुछ क्वेश्चन लगा के आए होगे। अगर नहीं आए हो तो कोई बात नहीं है, हम शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, पहले मैं देख लूं कि स्ट्रेंथ क्या है क्लास की, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। बच्चे प्रेजेंट हैं टोटल 100। अरे गजब, तोड़ फोड़ मचा दियो जी। 177 बच्चा है, मजा आ गया भाई, गजब, वेरी गुड। तुम ही लोग का होगा टीसीएस में, बता दे रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, 11th क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। करें? कोई एक अनम्यूट करो। चलो जल्दी करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाक से करो जल्दी से। सर 2 टाइम्स। अरे वाह गजब, 2 टाइम्स, बिल्कुल सही। मुझे कराने की जरूरत है क्या? सन एक्स है, यहाँ एक ही गलती कर सकता था। फादर का एज जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा है, तो ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि 3x लिख दोगे, गलत हो जाएगा। 3x + x लिखना है, 4x होगा। बस यही, यहां गलती नहीं की, ये तो बच गए तुम। ये सन का एज और ये फादर का एज, ठीक है? अब बाकी इक्वेशन है, इक्वेशन कैसे बनेगा भाई? x + 8, 8 साल बाद सन का एज x + 8, और 8 साल बाद
पापा का एज 4x + 8, ठीक है। ईएन का एक बच्चा है, अपने नाम के आगे व्हाट्सएप पे लिखे हुए फादर साहेब प्रांजल मिश्रा, बदमाश बच्चा। चलो, है कि नहीं है क्लास में? नहीं होगा सर, बदमाश कहीं ना रोज पिटे है ये। अच्छा, रोज पिटे, ठीक है, तब ठीक है। चलो अजय, सब छोड़ो, क्लास में टाइम कम है इसलिए सब नहीं बात करेंगे। चलो, x + 8 हो गया। अब ये बोल रहा है कि ये 2.5 गुना ज्यादा है, ठीक है ना। पिताजी का उम्र 2.5 गुना ज्यादा है, कब? 8 साल बाद। यहां से x की वैल्यू निकाल लेना, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 8, ठीक है भैया। 8 आ गई एज। तो अब देखो भाई, अभी बेटे की उम्र कितनी है? 8 साल, और फादर की उम्र कितनी है? 32 साल, ठीक है। लेकिन यहीं पे नहीं रुकना है, क्वेश्चन कर रहा है कि 16 साल बाद, फर्दर 8 इयर्स, फर्दर 8 साल तो जुड़ा ही था, 8 साल और जुड़ा, तो 16 जोड़ दो इसमें भी और 16 जोड़ दो इसमें भी, दोनों में ये हो गया 24 और ये हो गया 48। तो भैया ये इसका कितना है? डबल आंसर। अब मैं फटाफट इसलिए बता दिया क्योंकि एक बच्चे ने इसका आंसर दे दिया था। ऐसे भी ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था, एकदम सिंपल वाला, ठीक है। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं तुम लोगों को। क्वेश्चन तो तुम लोगों के पास है ही, भेज दिया था मैंने। चलो जल्दी से, बिल्कुल आसान। ये इसका आंसर, इसका भी आंसर पता है तो जल्दी बताओ, तो मैं मुश्किल वाले क्वेश्चन फटाफट करा दूंगा। ये किया था किसी ने? नहीं। A shopkeeper bought 30 kg of rice at rate of 58 rupees per kg. अब 50 kg of rice at rate of 40 per kg मिक्स किया, मिक्सचर को भेजा, बेचा 54 पर केजी में। कोई आंसर बताना चाह रहा है क्या? नहीं। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन। एकदम आसान सा क्वेश्चन। सीपी देखो कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 30 × 58 प्लस 50 × 40। ये सम करोगे तो ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 3740। सेलिंग प्राइस भैया, कितना सामान बेच रहा है वो? मिक्सचर कितने का बनाया है? 30 और 50 दोनों मिला करके, तो 80 केजी बेच रहा है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, 15.51%। अभी अभी किया तुमने, बहुत अच्छा लगा मुझे। 80 केजी बेचा है, किस रेट पे? 54 के रेट पे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4320। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेना, ये आ जाएगा 15.51%। अच्छा सुनो, मैं लास्ट क्लास में ही बोला था, फिर रिपीट कर दे रहा हूं। टीसीएस के 2 टाइप के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे टीसीएस में, ठीक है। एक होगा ट्रिकी वन, जिसमें दिमाग लगेगा और फटाक से आंसर दे दोगे, और एक होगा कैलकुलेशन बेस्ड, क्योंकि 26 क्वेश्चन 40 मिनट में, मतलब कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी कैलकुलेशन वाला ही था एक तरह से, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट मूव करते हैं। दिस वन इज ऑसम क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया, शानदार क्वेश्चन, पेपर में आने लायक। क्लास में मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था, जिसमें बताया था कि एक बदमाश बच्चा होता है, पापा के बॉटल में से निकाल लेता है वाइन, फिर पानी से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं मैं, पेपर में जरूर आएगा, जरूर, पक्का। करो। Process 4 times and thus there was only 512 meter of air left in the म्यूट कर लो माता जी। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, और इस फॉर्मूला को याद रखना है, जैसे मम्मी पापा का नाम याद रहता है वैसे ही। फाइनल क्वांटिटी इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू में 1 माइनस रिप्लेसमेंट होगा किसका? 1250। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया, सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड, इम्प्रेस्ड, वेरी गुड। 1250
1250 बिल्कुल सही आंसर। 1 माइनस 1/5 टू द पावर 4। ये फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा ना, इसको याद रखना, ये काम करे का फॉर्मूला है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो इसको ऐसे ही करना है। फाइनल क्वांटिटी बराबर है इनिशियल क्वांटिटी इनटू में रिप्लेसमेंट जो हो रहा है उसके पावर में n मतलब कितने टाइम हुआ ये काम, ठीक है। अच्छा तुम्हें यहाँ फाइनल, अब यहां भी गलती करते थे बच्चों को लगता है कि 512 जो वो इनिशियल क्वांटिटी, नहीं, ये फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है। तो यहां मेरा है 512। इनिशियल क्वांटिटी हमें निकालनी है x, और ये क्या है हमारा 4/5 टू द पावर 4। यहां से कैलकुलेशन करके x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1250 ml। एंड दिस इज रियली एन ऑसम क्वेश्चन and you are going to get this type of question in the paper for sure, ठीक है। तो जो लोग जवाब दे रहे हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं दे रहे हैं प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। शीट मैंने भेज रखी है, शीट में इस तरह के 2-3 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आज वाली शीट थोड़ी सी अच्छी वाली है, उस दिन वाली भी ठीक थी, मैंने मिक्स रखा हुआ है क्वेश्चन, आसान भी और मुश्किल भी, ठीक है। दिस वन इज गुड। ये मैंने कराया था क्या उस दिन? आप लोग कराया था ये वाला? सर हाँ सर कराया था। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज आगे बढ़ रहा हूँ। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं अटेंड की थी, घबराना नहीं है, आप देख लीजिएगा, मैं सॉल्यूशन भी भेज देता हूं। कल भेज दिया था मैंने सारा सॉल्यूशन आप लोग को। दिस वन इज गुड। ये वाला क्वेश्चन जो करेगा ना उसको चॉकलेट दूंगा, डेयरी मिल्क सिल्क। ट्राई करो जल्दी से, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। सर क्वेश्चन तो दिखाओ। अबे दिख रहा होगा, मारूंगा मैं, स्क्रीन शेयर कर रखा है मैंने। ABCD is a square drawn inside a square PQRS of side 4 centimeter। बाकी लोग को तो दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है? 32 सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। 32 बिल्कुल सही बिल्कुल सही। गजब मेहनत करके आए हो तुम लोग लगता है। देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, और इसमें तुम्हारा क्या कहते हैं फिर आगे ऐसे बनेगा कुछ इस तरीके से। मेरी ड्राइंग खराब है। अब तुम्हें क्या करना है? सर आपका नेट भी चल रहा है, आप जो भी कर रहे हो ना, आपकी वॉइस तो आ रही है बट स्क्रीन लैग हो रही है। जब आप क्वेश्चन मूव कर देते हैं तब भी बहुत टाइम तक न्यू क्वेश्चन नहीं अपीयर होता है, और अभी आप ड्रॉ कर रहे दिख नहीं रहा। इसमें मेरा इंटरनेट स्लो है या तुम्हारा इंटरनेट स्लो है? सर आपका। सर ऑब्वियसली आपका सबका सही वही हो रहा है, सबके साथ सेम प्रॉब्लम है। सबके साथ हो रहा है? अच्छा तब तो फिर मेरी गलती। तो मैं क्या करूं? हम इंटरनेट वाले को क्या करूं बताओ? कॉलेज का इंटरनेट खराब, यहाँ का इंटरनेट खराब, क्या करूं मैं? अभी पिछली क्लास में तो ठीक चल रहा था। चलो कोई नहीं, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सो बताओ। दिख रहा है सर। वेरी गुड, यस सर। देखो भाई दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। अभी मैं अब ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा सा होगा इंटरनेट, अब क्या करें, तुम्हारे साथ भी दिक्कत, मेरे साथ भी दिक्कत। ये PQRS है और ये ABCD है, ठीक है। अब इसका जो लेंथ होगा ये इसके आधा, मिड पॉइंट पे बोला है ना, और ये 4 दिया हुआ था, PQ 4 दिया हुआ था, ठीक है। तो AB मेरा क्या होगा? हाइपोटेनस होगा 2 और 2, तो रूट अंडर ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा 2√2, ठीक है। अगला वाला जो होगा लेंथ, जो भी अगला ये वाला जो होगा, ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर ऑफ √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 2 वैल्यू आ जाएगी। बोला था कि सम ऑफ ऑल द स्क्वायर, सम ऑफ एरिया लिखना चाहिए था, एरिया लिखना चाहिए था। तो
तो एरिया निकालते, पहला का एरिया क्या होगा भाई 4 का स्क्वायर, दूसरे का एरिया क्या होगा 2√2 का स्क्वायर, तीसरे का एरिया क्या होगा 2 का स्क्वायर। ये कहां तक जाएगी इन्फिनिटी तक। ये क्या हो गया 16 जोड़ 8 जोड़ 4 जोड़ डॉट 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 डॉट। तो मेरा ये इनफाइनाइट टर्म्स में क्या है जीपी बन रहा है, और जीपी का फॉर्मूला क्या होता है a/1 माइनस आर। ए कितना है मेरा 16, 1 माइनस आर कितना है 1/2, 8/16 करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 16/1 माइनस 1/2 ये कितना हो जाएगा 32। स्टार लगा देता हूं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, ग्रह नक्षत्र सही चलते रहे, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलो कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग करके आए हैं, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लग रहा है। ये क्वेश्चन करो भाई, दिस वन इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। दूसरे क्लास में मैंने ये नहीं कराया है, बोला है कि पहले सॉल्यूशन भेजूंगा, फिर समझना फिर करना। ये क्वेश्चन बहुत टफ है, पता नहीं मैं समझा भी पाऊंगा तुम लोग को ढंग से कि नहीं समझा पाऊंगा। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ के आ जाना, ठीक है सर 21 और 22 21 या 22 22 गलत है, 21 है, ये भी गलत है। अभिषेक सही है तेरा 21। चल राधेश्याम सर कैसे 21 बताएंगे जरा, मनीष बोल रहा हूँ। बिल्कुल बता रहा हूँ, बहुत कठिन क्वेश्चन है ये, बहुत कठिन। चलो इमेजिन करना पड़ेगा, लो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, पहले सॉल्यूशन दिखा रहा हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को तो प्लीज जरा ध्यान से देखना। मैंने कुछ ड्रॉ करने की कोशिश की है, इसमें बॉक्स बनाया है और उसके बाद ये कैन बनाया है जिसमें बॉल आ रहा है। इसके अंदर कैन का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर हो जाएगी 14 सेंटीमीटर और हाइट है मेरी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और बॉक्स की स्पेसिफिकेशन दी हुई है 76 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। अभी देखो थोड़ा सा बॉक्स इमेजिन करो और कैन इमेजिन करो, कैसे रखा जा सकता है। एक तरीका तो यह है कि उसको हॉरिजॉन्टली लिटा करके रखा जाए, ठीक है। दूसरा तरीका है कि उसको हम सीधे सीधे रखें, ठीक है ना। अच्छा चलो अगर हम सीधे सीधे रखेंगे, ठीक है जी, लेंथ वाइज देखना, डायमीटर है हमारा 14 सेंटीमीटर और लेंथ है इसकी 76 सेंटीमीटर, तो हम कितना ले सकते हैं 76/14 रो ले सकते हैं। अब 76/14 जो होगा वो डेसिमल में आ रहा होगा, तो हमें डेसिमल में नहीं लेना है क्योंकि डेसिमल में हमारा कैन थोड़ी होगा, होल नंबर होना चाहिए। तो ये हमारा जो होल नंबर नियरेस्ट